Student. Okay. Okay, I think we have covered KMAP and probably up to the end of KMAP. Okay, all our rules, summary, and Boolean function, 5 variable KMAP हो गया था. I think it is also there. Now, don't care portion. I think it is remaining. Okay, from don't care, we have completed the KMAP, but don't care, it is a more simplification version of KMAP. Okay, now what is it in don't care condition? So suppose we are given a problem of implementing a circuit to generate a logical one when 2, 7 or 15 appears on 4 variable input. Okay, so when we put 1, when 2, 7, 15 are given. Okay, and a logical 0 should be generated when 0, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13 and 14 are appears. Means at 2, 7, 15 we have to plus 1, and from 0, 1, 4, 5, 6, 10, 13 and 14 पे हमें क्या mention करना है? 0. So what about 3, 8, 11 and 12? Because this combination never occur in our system, we can consider this combination a don't care combination, because we don't care about that whether input generate logic 1 or 0. मीन्स मैं इनपुट दूं और वो 1 जनरेट कर रहा है या 0 जनरेट कर रहा है, वी डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज वो कॉम्बिनेशन ही जनरेट नहीं हो रहा है. ओके, if I consider this three combination 3, 8, 11 and 12. Okay, if this particular inputs generate a logical 1 or 0, but we don't care because वो combination ही generate नहीं हो रहे हैं in your circuit or in your system. Combination कितने generate हो रहे हैं? This 3 for 1 and this for 0. But 3, 8, 11, 12 के लिए कुछ भी नहीं दिया, means we just assume that this combination never occur in this system. So we don't care about whether the inputs generate a logical 1 or 0. So this particular don't care combination marked by X in KMAP, which can be used for the making groups. Okay, don't care combination को हमें X through represent करना है. Okay, and in KMAP which can be used for making the groups. Okay, so this don't care combination either you can represent it by X or cross in KMAP. Okay, so this above example. Okay, now tell me in BCD which are the illegal codes in BCD. Actually in BCD we just consider from 0 to 9. Okay, so from 0 to 9 we can consider as a original combination. So now what about like 10 to 15? Okay, BCD, in BCD this 10 to 15 never occurs. So this 10 to 15 consider as a illegal code. So we just take as a don't care combination ना, because वो generate ही नहीं हो रहा है. So if question is like that कि design like BCD code using KMAP. So हमें 0 to 9 पे 1 रखना है and 10 to 15 पे क्या लिखना है? Cross. Okay, same like XS3. Okay, in XS3 which are the illegal codes? 0, 0, 1, 2 and 13, 14, 15. Yes. Actually, in XS3, how we can find XS3? By adding Hello? How we can find XS3? चलो बताओ XS3 हमें कैसे मिलेगा? XS3 आप कैसे लिखते बताइए. जब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं जाऊंगी. How we can find XS3 code?
गिव मी आंसर। आंसर बताइए। मैंने जैसे बोला मुझे आंसर नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे फॉरवर्ड नहीं हूँ। एक्सेस 3 हमें कैसे मिलता है? add 3 to every decimal number or add 3 to BCD code? Yes, we have to add 3 to BCD code. So BCD code, it is only from 0 to 9. So अगर 3 add करती हूँ 0 plus 3. So what about 0 1 2? And last combination कौन सा है BCD का? 9. So 9 plus 3 means 12. So what about 13, 14 and 15? So these 6 are the illegal codes in access 3. So we can use this illegal code as a don't care combination for simplification of your circuit or CAMAP. But depend upon example. अगर आपको BCD का example दिया तभी आप उसको use कर सकते हैं, and access 3 का example दिया तभी आप उसको as a don't care use कर सकते हैं. Many time normally in GTU paper means it is already given. आपको डोंट केयर डायरेक्टली दे ही देंगे कि डी इन ब्रैकेट दिस कॉम्बिनेशन कंसिडर्स द डोंट केयर, पुट एक्स एंड मेक अ कॉम्बिनेशन. ओके, सो नाउ एग्जांपल. ओके, आपको मीन टर्म दी एफ ए बी सी डी. ओके, 2 7 15 आर द मीन टर्म्स एंड डोंट केयर कॉम्बिनेशन कौन कौन से दिए? 3 8 11 12 मीन्स 2 7 15 पे मुझे 1 मेंशन करना है एंड 3 8 11 12 पे मुझे क्या प्लस करना है? x. डोंट के. सो सिंपली ए बी मैंने कॉलम में लिया है, सो ये कॉलम वाइज जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ओनली 2 7 15 पे आपको 1 प्लस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 7 15 पे 1 प्लस कर दिया. नाउ 3 8 11 12 पे क्या करना है? डोंट के. ओके, नाउ कौन सी पेयर बनेगी बताइए? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, it is necessary to cover 1 but it is not necessary to cover x. Don't care, because this cross or x normally used to simplify your CAMAP. मतलब 1 के साथ अगर वो ग्रुप बना रहा है then and then we can use this don't care. otherwise अलग से अगर दो x है नियर में adjacent में, so उसको कंबाइन करने नहीं जाना है. जब तक x और डोंट केयर आपके ग्रुप को ज्यादा बड़ा बना रहा है और सिंप्लीफाई करे तब तक ही उसका यूज करना है. अलग से x को कंबाइन करने नहीं जाना है. मतलब इट इज नॉट नेसेसरी टू कंबाइन ऑल x बट इट इज नेसेसरी टू कंबाइन ऑल 1 बाय यूजिंग x. ओके, सो नाउ टेल मी कौन सा ग्रुप बन सकता है इसमें? 4 का दिस वन x 1 1 x. If you combine x with 1, so you just assume कि x की वैल्यू क्या है? 1. आपको ऐसे assume करना है. ओके ओके, नाउ और कोई ग्रुप बनेगा? 2 का. कौन सा वाला? 2 बनेंगे x और 1 के साथ और ऊपर x. अभी मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ? इट इज नॉट नेसेसरी टू कवर ऑल x. जब तक वो 1 के साथ कंबाइन हो रहा है तभी तक आपको उसका यूज करना है. अलग अगर एक्सेस है दिस वन, उसको अगर कंबाइन किया तो एक एक्स्ट्रा टर्म जनरेट होगी. मतलब आपका जो कैमएप है वो सिंप्लीफाई की जगह पे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो x को आपको अगर वो 1 के साथ कंबाइन हो रहा है देन आपको x का यूज करना है. यहाँ पे देखो, अगर मैं 2x को कंबाइन कर रही हूँ तो क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं. वो किसी भी 1 के साथ कंबाइन हो रहा है नहीं. x का मीनिंग ही क्या है कि वो आपके केमएप को सिंप्लीफाई करेगा. मतलब x को एज ए कॉम्बिनेशन नहीं लेना है. x का जब तक कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है तब तक ही उसका यूज करना है, जब तक वो 1 के साथ कंबाइन हो रहा है. नाउ टेल मी कौन सा ग्रुप बनेगा? x और 1. ओनली x 1 का ही ग्रुप बनाना है. अलग से अगर एक्सेस है तो उसको कंबाइन करने नहीं जाना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा टर्म जनरेट होगी. ओके, चलिए इसका आंसर बताइए.
4 group of 4 square. What is the answer of this group? CD. Because if you consider all 4 columns, then obviously either A change होगा या B change होगा. So in a row CD की value तो एक ही है 1 1. So your answer is only CD. Okay, now what about 1x? उसका आंसर बताइए. C A dash B dash. Yes. If you consider column, so it is A dash B dash. If you consider 2 row, so of course D change हो रहा है, only C fix है, so it is A dash B dash C, which is your next term. So 2 term आएगी CD plus A dash B dash C. Okay. चलिए फाइंड कीजिए, अपनी बुक में इसको सोल्व कीजिए. 1 3 7 11 15 आर द मीन टर्म्स एंड डोंट केयर आर द 0 to 5. 1 3 7 11 15 D 0 to 5. मैंने ऐसे लिया हुआ है, WX को कॉलम में लिया, दैट्स वाई मेरा कॉलम में गया है. आप WX को अगर रो में लेंगे स्टार्टिंग के 2 वेरिएबल को, तो वो रो वाइज जाएगा. ठीक है, आई थिंक कॉलम वाइज एंड रो वाइज कैसे लिखना है वो सबको पता ही है, फिर भी ये टेबल आपको दिखा रही हूँ. ठीक है, सिंपली आपको 1 3 7 11 15 पे 1 प्लस करना है एंड 0 to 5 पे क्या प्लस करना है, क्रॉस एंड मेक ग्रुप. ये सारे प्लेसेस पे 1 आएगा एंड x आएगा. Have you found this type of representation of 1 and x? Yes ma'am. Okay, so now make a group. कौन सा ग्रुप बनेगा बताइए. 4 4 के 2 बनेंगे और 2 का 1 बनेगा. 4 4 के 2 बनेंगे. मुझे 5 कितने दिए, 1 2 3 4 5. फोर 4 के ही 2 बनेंगे. आप देखिए यहाँ पे एक पूरी रो एंड दिस कॉलम. इस x को करना जरूरी नहीं है. ठीक है, समझ आ रहा है. तो इसलिए मैंने क्या किया, इस रो एंड कॉलम को किया हुआ. इस x को कंसिडर करना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है कि अगर इन दोनों x को मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो मैं 1x एंड 1 1 उसको भी कंबाइन कर सकती हूँ. गॉट इट. आप रो तो कर ही सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं, एज वेल एज मैं इसको भी कर सकती हूँ. लेकिन आइदर ये 4 को करना है या फिर इस कॉलम को करना है. दोनों को करेंगे तो अगेन एक एक्स्ट्रा टर्म जनरेट होगी, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू कवर दिस x. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 को कवर करना है. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 1 को कवर किया हुआ है. ठीक है, चलिए इस किसी को डाउट है टू मेकिंग ए ग्रुप? ये जो मैंने ग्रुप बनाया उसमें किसी को डाउट है?
नो मैम। ओके, आइदर आप रो का बना देना, रो का तो बनाना ही पड़ेगा, वो फिक्स है। कॉलम में आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन कंबाइन दिस 4 और दिस वर्टिकल लाइन, लेकिन दोनों नहीं करना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा टर्म जनरेट होगी। ठीक है, एक्स को कवर करना रिक्वायरमेंट नहीं है अगेन। ओके, नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस ग्रुप, रो वाला? YZ plus YZ. W dash X dash. Yes, it is a YZ plus W dash X dash. Okay, it is a YZ and it is a W dash X dash. Okay, it's very simple. अगर आपको के में पाता है तो बहुत easy है. Only one thing keep in mind that कि it is not necessary to cover all X, but it is necessary to cover all 1. And try आपको ऐसी करनी है कि few numbers of group बने, जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही ग्रुप बनना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 4 का बनाऊँ तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं, मेरा ऑल वंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो जितने हैं उतने कम ग्रुप बनाना। ओके, सो यहाँ पे केमैप आपका कंप्लीट हुआ। केमैप 4 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, ओके, एंड डोंट केयर विच इज यूज्ड फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन ऑफ केमैप। ओके, now next method is a variable entered map. Actually this method used to reduce the dimension of your KMap. मीन्स अगर आपको 5 वेरिएबल दिया है, ओके, सो यू टू जस्ट कंसीडर 2 पेजेस ऑफ योर बुक, मीन्स 32 नंबर्स ऑफ स्क्वायर। उसकी जगह पे 5 की जगह पे अगर आपका केमैप है वो 4 वेरिएबल का हो जाए, सो इट इज अ वेरी इजी फॉर यू। सो दिस वेरिएबल एंटर्ड मैप reduce the dimension of KMap by entering a one variable inside a cell or inside a KMap. मीन्स लाइक अगर मुझे ABCD दिया है तो D को मुझे क्या करना है, मैप के अंदर एंटर कर देना है। सेम अगर मुझे ABC दिया हुआ है तो मुझे 3 वेरिएबल का KMap एक्चुअल में बनेगा, बट अगर C को मैं इनसाइड एंटर कर देती हूँ तो मेरे पास अब 2 ही वेरिएबल A एंड B, सो इट इज अ 2 वेरिएबल KMap। मीन्स 3 वेरिएबल डायरेक्टली 2 वेरिएबल में कवर हो जाएगा, 5 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल में कवर हो जाएगा। So variable entered map can be used to plot n variable problem on n-1 variable map. Okay, actually में 5 variable का था, but we can plot this function on n-1 means 4 variable KMap also. So it is the most important property of variable entered map, क्योंकि directly आपके dimension कम हो गए, means वो बहुत इजी हो जाएगा आपका KMap। आपको कोई लाइक ऐसा बोले कि सोल्व दिस एग्जांपल 4 वेरिएबल KMap एंड 5 वेरिएबल का सोल्व करने को बोले तो ऑफकोर्स 4 वेरिएबल का ही जल्दी होगा, बिकॉज उसमें आपको जो जजमेंट लेना है इट इज इजी कंपेयर टू 5 वेरिएबल KMap। ओके, नाउ पॉसिबल टू रिड्यूस द मैप डायमेंशन बाय 2 or 3 इन सम केसेस। एडवांटेज ऑफ यूजिंग VEM occurs in a design problem involving multiplexer। कैसे करना है, जैसे आपको एक फंक्शन दिया है, क्या फंक्शन दिया है मुझे, a dash b dash c dash। so normally if you consider, so it is a 3 वेरिएबल KMap। देख के आपको क्या लग रहा है कौन सा यूज होगा, 3 वेरिएबल है तो ऑफ कोर्स 3 वेरिएबल KMap यूज होगा, बट वी कैन एंटर्ड 1 वेरिएबल इनसाइड a KMap। तो मैं यहाँ पे c को नॉर्मली जो लास्ट ना उसको ही एंटर करते हैं, वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, बट इन एवरी बुक और कोई भी जगह पे आप देखेंगे तो लास्ट वेरिएबल को प्रीफर किया है टू एंटर्ड इन अ मैप। सो c को आपको एंटर्ड करना है। It is also called as a map entered variable or variable entered map. So VEM method और MEV method both are same. Okay, so simply क्या करना है मुझे कि अब मुझे C को एंटर कर देना, मेरे पास 2 ही वेरिएबल बचे, कौन से, A and B। So we just draw the 2 वेरिएबल KMap। एक्चुअली में कितना था, 3 वेरिएबल KMap, बट किस में कन्वर्ट हो गया वो 2 वेरिएबल KMap में। अब इनसाइड ब्रैकेट इनसाइड सेल, सो A dash B dash, सो A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, C dash, सिंपल, यहाँ पे C dash पुट किया। इफ C dash इज इक्वल टू 1 देन एंड देन इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। सेम A B C dash, सो A B मतलब ये, उसमें C dash, तो C dash एंटर कर देना सिंपली। A B dash C, सो A B dash C dash, तो A B dash तो हो गया, C dash एंटर करना है तो C dash यहाँ पे एंटर्ड कर देना। नाउ ABC, A B वो दोनों आ गया, C एंटर्ड करना है तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे C dash था तो C यहाँ पे एडिशन में आएगा। और आप ये दोनों टर्म को देखिए, सेकंड एंड फोर्थ, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, AB कॉमन निकल रहा है, तो AB कॉमन निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, C plus C dash। सो A B
एंड ब्रैकेट में क्या है सी प्लस सी डैश, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी के अलावा जो भी टर्म्स है वो यहाँ पे एंटर कर देनी, बहुत ईजी है। उसके बाद इसके कॉम्बिनेशन बनाने, देखो सी डैश को हम कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सी डैश को मैं कंबाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो व्हाट अबाउट दिस दैट सी, क्योंकि आपको वो एक टर्म दी है जिसको कवर करना भी रिक्वायरमेंट है, आपके सी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, सी किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, यहाँ पे ये सी डैश कंबाइन हो जाएंगे, ये सी डैश भी कंबाइन हो जाएंगे। सो व्हाट अबाउट सी, सो इफ आई जस्ट राइट के लाइक ए बी एंड सी, वो टर्म मैंने लिख दी, चलो क्योंकि वो कंबाइन नहीं हो रहा था तो मैंने लिख दी, बट यहाँ पे आपको सी प्लस सी डैश दिया, तो यू कैन कंसिडर एज अ वन ऑल्सो ना, जैसे ये वन है, सो मेरे पास क्या टर्म मिलेगी ए बी, सो ए बी शॉर्ट है या ए बी सी शॉर्ट है, ऑफकोर्स ए बी शॉर्ट है, तो जब सी अकेला यहाँ पे रहता है तो ए बी सी नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, इसको एज ए वन कंसिडर कर लेना है, यू हैव टू जस्ट राइट ए बी ओनली, क्योंकि व्हाट इज अवर एम, टू रिड्यूस द नंबर्स ऑफ लिटरल, तो ए बी सी लिखूंगी तो ऑफकोर्स लिटरल ज़्यादा हो जाएंगे, तो मुझे इसको वन एज्यूम कर देना है, इसको कंबाइन करके वन एज्यूम करना है, ऐसा सिंपली क्या आएगा ए बी। सो इसमें एक्चुअल में टर्म कौन कौन सी आएगी, आई जस्ट टेक द टेक्स्ट बॉक्स एंड वी कैन सिंपली राइट। सो योर फंक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसको अगर मैं कंबाइन कर रही हूँ, सो रो कॉलम ऑलवेज चेंज हो रही है, सिर्फ रो फिक्स है, क्या है बी डैश, सो आई जस्ट राइट बी डैश, और किसको कंबाइन किया है मैंने, सी डैश को, सो माय आंसर इट इज ए सी डैश, ओके। नाउ प्लस यहाँ पे इन दोनों सी डैश को मैंने कंबाइन किया है, तो ऑफ कोर्स बी चेंज होगा, इन कॉलम में ओनली ए फिक्स है, तो ए और किसको कंबाइन कर रही हूँ, सी डैश को, सो इट इज सी डैश। नाउ इस सी को मैं अकेला नहीं लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अगर सी को मैं इस टर्म को लिखूंगी सो इट इज ए बी सी, तो मैंने इसको एज ए वन एज्यूम कर लिया, सो नाउ माय आंसर इट इज ए टू। It is a reduced function of this 3 variable K-map by using 2 variable K-map। 3 को डायरेक्टली मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया by entering C into the K-map, और ये इसका reduced function है। So it is the use of VEM method, okay। Okay, choose the group of similar terms to cover all non-zero terms appearing in the map except don't care terms, ठीक है। Rest complete process in similar to K-map। ओके चलो, आपको फंक्शन दिया है, प्लीज एंटर कीजिए, आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, मीन्स एक्चुअल में 4 वेरिएबल K-map, बट बाय यूजिंग वीएम मेथड वी कैन कन्वर्ट इनटू 3 वेरिएबल K-map, दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 वेरिएबल K-map ही ड्रॉ किया हुआ है। किसको एंटर्ड वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पे, विच वन इट इज एंटर्ड वेरिएबल इनटू द मैप, डी को नहीं लिया है, दैट्स व्हाई ए बी और सी यहाँ पे, डी नहीं है, ओके। कॉलम वाइज लेना, बिकॉज ए बी यहाँ पे कॉलम में लिया 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो 1 बाय 1 सारे जो भी आपको दी है उसको इसमें एंटर कर दीजिए। चलिए, जैसे आगे एंटर किया, इसमें एंटर कर दो, उसके बाद ग्रुप बनाओ, उसके बाद हमें आंसर मिले। Representation of enter D? Yes, ma'am. Okay,
नाउ कंबाइन, कैसे कंबाइन होगा बताइए? यहाँ पे D है ना, सो वी कैन मेक अ पेयर ऑफ दिस D, D एंड D, सेम इन दोनों D को हम कंबाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस? ये किसी के साथ कंबाइन तो नहीं हो रहा है ना? हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ग्रुप बना दीजिए आप, जैसे एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। ओके, सो इसका क्या कर सकते हैं हम? मैं सेपरेट नहीं लिख सकती हूँ दो टर्म, ठीक है। ये D प्लस डी डैश कैसे आया यहाँ पे? ये देखो ये दोनों टर्म सेम है, कौन सी है ये? ए बी डैश सी, दिस वन ए बी डैश सी डी एंड ए बी डैश सी डी डैश। तो ए बी डैश सी को कॉमन निकालिए, सो इट इज ए डी प्लस डी डैश, सो इट इज ए दिस पर्टिकुलर सेल, इट इज ए बी डैश सी। तो क्या एंटर करना है वहां पे? डी प्लस डी डैश। ओके, नाउ यहाँ पे ये दो के ग्रुप बन गए, इट्स ओके। चलो नाउ व्हाट अबाउट दिस? इसको मैं ऐसे लिख दूं सिंपली कि ए बी डैश सी डी प्लस ए बी डैश सी डी डैश, ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। डी प्लस डी डैश मीन्स क्या है? 1। इसको अगर 1 एज्यूम कर रही हूँ, यस, एनी डाउट? अगर मैं इसको यहाँ पे 1 एज्यूम कर रही हूँ, सो मेरा आंसर क्या आएगा? ए बी डैश सी। इसकी जगह पे डी एंड डी डैश को सेपरेट कंसीडर करती, सो नंबर्स ऑफ लीटर ज्यादा हो जाते, और कहीं पे कंबाइन भी नहीं हो रहा है, तो सिंपली राइट एज ए 1 और उसकी टर्म लिख देनी है, इट इज ए बी डैश सी। नाउ इसकी टर्म बताइए, चलिए। व्हाट अबाउट द आंसर ऑफ दिस ग्रुप? ए डैश सी डैश। यस, इट इज ए डैश सी डैश। एंड डी नहीं आएगा? हाँ आएगा। यस, इट इज ए डैश सी डैश एंड डी आएगा भी, तो आप डी को कंबाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ यहाँ पे इन दोनों का आंसर बताइए। अगेन इस डी और इस डी को हम बी कंबाइन सी डैश डी। इट इज ए बी डैश सी डैश, सॉरी बी सी डैश डी। ओके, और ये ऑफ कोर्स सिंपली कंसीडर एज ए 1, सो इट इज ए बी डैश सी। ओके, एनी डाउट इन दिस VM मेथड? No ma'am. Okay, please enter. Again 4 variable K-map, you have to convert into 3 variable K-map by entering D in your map. Just put the one, sorry मतलब D और जो भी like D है उसको enter कीजिए। Okay, you found this type of representation, I think. ऐसा मिल रहा होगा आपको। Yes ma'am. ओके, कितनी पेयर बनेगी वो मुझे सिर्फ बता दीजिए। दो दो के ग्रुप कितने बनेंगे? Three. Yes, it is 3. D 3 The- बनेंगे। This D and this D make a one group. Same for D dash make a one group. Same D dash and D dash make a one group. So what about this D and D? Simply consider as a 1 because D plus D dash. तो यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेना और उसकी आपको टर्म लिख देनी। जैसे इसका बनेगा, ठीक है। उसके बाद किसका बनाएंगे? इसका बनाएंगे। So consider as a 1 means। फिर यहाँ पे लाइक डी डैश एंड डी डैश को आप कंबाइन कर सकते हैं एंड लास्ट ये डी डैश एंड डी डैश को कंबाइन कर सकते हैं
एंड लास्ट कौन सी टर्म बनेगी, ये वाली, ठीक है. सो दिस टू एंड दिस टू and this d and d are remaining. Okay, so we can't just write like a b c d. If I assume d plus d dash means 1, so of course it is a dash b c dash. It is my answer. Same for here, यहाँ पे a dash b c dash वो इसका है. Same for here, यहाँ पे क्या आएगा, a b dash c. So यहाँ पे इसका a b dash c कहाँ गया, a b dash c, a b dash C. Okay, I think it is a mistake. यहाँ पे क्या आएगा, A B dash C. Same यहाँ पे अगर मैं combine करती हूँ, so it is A C and D dash, मतलब ये. Okay, इन दोनों का ग्रुपिंग का क्या आएगा, A C D dash. Okay, इन दोनों के ग्रुपिंग का क्या आएगा, A B dash C dash. एक मिनट, A B dash C नहीं आएगा. ओके, A B dash एंड D dash, A B dash D dash मतलब ये वाला है. ओके, एंड इसका कंबाइन किया, सो इट इज A dash B C dash. ओके, और इसका क्या आ रहा है, ओके, 1 आई थिंक रिमेनिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ कंफ्यूजन, एंटर्ड करना बाकी था. ओके, सो टोटल 3 कौन सा ग्रुप से, 2 2 के ग्रुप से उसका बनेगा, और ये 2 जो D बचे हैं उसको मुझे एज ए 1 कंसीडर कर लेना, उसके 2 ग्रुप आएंगे. सो 3 + 2 मीन्स कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 5. ओके, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. Okay, so last one, it is a reduced expression with VM method. It is a 5 variable K-map and you have to convert into 4 variable K-map by entering E, last variable E into the map. E को एंटर कीजिए, चलिए आप फर्स्ट एंटर कर दीजिए, उसके बाद में बताते हैं. Found this type of representation of entered E. इस टाइप का आ रहा है रिप्रेजेंटेशन सबका. Yes, ma'am. ओके, नाउ ग्रुप कितने बनेंगे बताइए. Four. 4 का एक तो बनेगा ही, कहाँ पे बनेगा 4 का है. फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम.
यस, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम। ओके, ये दोनों 4 के कंबाइन होंगे। ओके, क्या टर्म आएगी उसकी? रिड्यूस टर्म। C dash B dash बी डैश, सी डैश C dash और E. E. E, B dash, C dash, E. Okay, if you visualize this 2 column, so of course B it is only which is fixed, so it is a B dash, and if you consider row, so it is C dash, and किसको combine कर रहे हैं? E को, that's why it is a B dash, C dash, E. Okay, now और कौन सा ग्रुप बन सकता है? नीचे E dash E dash, Yes, ये दोनों combine हो सकते हैं, और ऊपर Last भी E column E dash E dash E dash। dash. ओके ओके, अब यहाँ पे एज्यूम कीजिए आप, अगर मैं ई डैश सी डैश को कंबाइन करती हूँ तो मेरी टर्म क्या आएगी? ए बी डैश सी डैश ई डैश। लेकिन अगर मैं इन दोनों को 1 1 एज्यूम कर लूँ, बिकॉज ई प्लस ए डैश है मेरे पास, ई प्लस ई डैश मीन्स 1, ई प्लस ई डैश मीन्स 1, तो 1 में ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा ई डैश सी डैश। ओके, तो 1 1 का ग्रुप में बनाऊंगी, सो मेरा आंसर क्या आएगा? ए बी डैश सी डैश ओनली। लेकिन अगर मैं ई डैश का ग्रुप बनाऊंगी, सो इट इज ए बी डैश सी डैश ई डैश, तो एक ई डैश 1 लिटरल है वो ज्यादा आएगा, सो इट इज अ मिस्टेक। जब तक 1 का बन रहा है ना तब तक 1 का बनाना है। देखो यहाँ पे ई प्लस ई डैश, सो इट इज 1, ई प्लस ई डैश इट इज 1, तो 1 में ये ई डैश सी डैश ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो, नो मैम। ओके, ई डैश सी डैश को आप कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन कब? जब उसके साथ अगर यहाँ पे प्लस ई प्रेजेंट नहीं हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो आपको उसका एडवांटेज लेना है, इसको एज्यूम 1 करना है। अगर 1 करेंगे तो एक लिटिल कम आएगा, दैट्स वाई। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए बी डैश सी डैश ओनली। ओके, नाउ यहाँ पे ये जैसे आपने बताया था वही बी डैश सी डैश सी, ठीक है, इसका पूरे का ग्रुप बनेगा एक 2 का, सो इट इज ए बी डैश सी डैश। अगर मैं ई डैश का करती हूँ तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिटरल आएगा ई डैश, तो हमें लिटरल कम हो वैसे ही ट्राई करनी है। ओके, एंड यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। ओके ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस ई, इसका क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? A dash B C dash D. नो, ऐसा नहीं पूछ रही हूँ, इस ई को मैं कैसे कवर करूंगी ऐसा पूछ रही हूँ आपको। यहाँ पे ई बचा हुआ है ना, तो उसका क्या करेंगे वो पूछ रही हूँ मैं आपको। 1 ले लेंगे। यस, ई इट इज एड विथ ई प्लस ई डैश, तो इसका 1 करके आपको टर्म लिखनी है, उसका अलग से ई करके टर्म नहीं लिखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर रही हूँ तो ए डैश बी सी ई डैश, विच इज आई थिंक लास्ट टर्म, ए डैश बी सी ई डैश। ओके, और ये टर्म किसके लिए है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंसिडर एज अ 1, सो ए डैश बी सी डी डैश। ओके, सो दिस 4 टर्म्स आर। ये भी आपको 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी है नहीं, बट थिंकिंग करना कैसे ग्रुप बनेंगे वो इम्पोर्टेंट है। और ऐसी ऑलवेज ट्राई करने के लिटरल है वो कम हो, ये नहीं कि ज़्यादा हो जाए लिटरल। ओके, जब तक हो उतने लिटरल कम होने चाहिए। ओके, एनी डाउट इन दिस, स्पेशली इन ग्रुपिंग? नो मैम। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमारी वीएम मेथड भी कंप्लीट हो रही है। कैमएप कंप्लीट हुआ, डोंट केयर एंड वीएम। ओके, दिस डोंट केयर एंड वीएम are the simply a simplification of CAMAP. All are the version of like VEM method, and one method is also remaining. It is called as a QM method and tabulation method, which is covered at last. वो last में मैंने रखी है और syllabus में भी last में ही है, because it is a some like a little difficult compared to like CAMAP. And what is the need of this QM method? Already हमारे पास ये CAMAP है, don't care है, VEM है, तो उसकी requirement क्या थी? Okay, so CAMAP if you consider, तो after 5 variable, 6 variable, 7 variable, it is a very difficult. अगर आप 6 variable का लेते हैं तो 2 raised to 6 means 64 numbers of square आएंगे.
सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। 2:7 तो उससे भी ज्यादा आएंगे, सो उसमें जजमेंट करना ग्रुपिंग का इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम और ओवरकम दिस प्रॉब्लम, दिस QM मेथड कम इनटू द पिक्चर। ओके, इट इज कॉल्ड QM मेथड और टेबुलेशन मेथड, जो हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी सारी कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट होगी, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सबट्रैक्टर, पैरेलल एडर, BCD एडर, ऑल आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट कवर होगी लास्ट में। ये QM मेथड है विच इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, वो मैं लास्ट में करवाऊंगी। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर आई थिंक तेजल मैडम ने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, सो अभी तो यहाँ पे मेरा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, मैडम का जितना कवर हो रहा होगा थर्ड लेक्चर में, उसके बाद का मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, ओके, क्योंकि अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज मैं ALU से स्टार्ट कर देती, बट इतना वैसे भी 40 मिनट हो चुके हैं, सो इट इज़ क्वाइट इनफ। ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? क्या क्या किया हमने इस चैप्टर में? आई जस्ट रिवाइज। क्या क्या किया? फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म। ओके, कौन कौन से फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है? ईच एंड एवरी टर्म हैविंग ऑल द वेरिएबल्स। ओके, मीन टर्म, मैक्स टर्म, POS फॉर्म, SOP फॉर्म, वो सारे कवर हुए इसमें। फिर फंक्शन को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म में दिया है तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद कैमैप, उसमें 2 वेरिएबल कैमैप, फिर 3 वेरिएबल कैमैप, 4 वेरिएबल कैमैप, वो सब आएगा। ओके, उसके रूल्स करवाए थे। सो इफ यू स्टडी दिस टाइप ऑफ और रिवाइज दिस टाइप ऑफ रूल्स, so like simplification of कैमैप, it is easy for you. So all are the rules. उसके समरी थी क्या क्या हमें आपको देखना है, मतलब जब आप कैमैप बना रहे हैं तो फंक्शन प्लॉटिंग है, ठीक है, रिड्यूस फंक्शन, ग्रुप कैसे बनाने हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये 5 वेरिएबल कैमैप है, उसका इम्प्लीमेंटेशन। आपको कोई भी फंक्शन दिया है तो आप उसका लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हैं। मेनी टाइम इन GTU में भी इट आस्क लाइक मीन्स सिंप्लीफाई दिस बूलियन फंक्शन एंड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। तो जो भी आपको फंक्शन मिला उसका लॉजिक डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डोंट केयर कंडीशन जो हमने आज ही की है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स है। वेरिएबल एंटर्ड मैप, अनदर नेम ऑफ वेरिएबल एंटर्ड मैप, इट इज अ मैप एंटर्ड वेरिएबल आल्सो, सो इट इज कॉल्ड एज अ VEM मेथड और MEV मेथड बोथ। उसका हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, 4 वेरिएबल के लिए, 5 वेरिएबल के लिए। ओके, यहाँ तक हुआ है हमारा। उसके बाद आई थिंक मैडम ने मल्टीप्लेक्स एक्सरसाइज स्टार्ट किया या फिर करने वाली है, मुझे आइडिया नहीं है, बट जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट मंडे डिस्कस करेंगे इसमें से। ठीक है, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो मैम। ओके मैम इसमें तो डाउट नहीं है, मगर एक असाइनमेंट में डाउट था कि एक क्वेश्चन था, उनमें कोई वैल्यू दी थी, उसको मतलब कन्वर्ट करना है और उसका आंसर 100 आ रहा है, तो वो मतलब क्या है, बाइनरी है, ऑक्टल है, वो एक्सपेंड करना था। नहीं, डिपेंड अपॉन बेस। बेस क्या लिया है आपने? तो मैम उसको हम ट्राई और एरर मेथड से कर सकते हैं या कोई दूसरे मेथड है? आपको बेस दिया है ना, उस वाइज करना है। आपको 2 बेस दिया है तो बाइनरी में वैल्यू आएगी। 3 बेस बोला है, 5 बेस लेना दिया है तो यू टू डिवाइड बाय 3, 5 और जो भी वैल्यू आ रही वही लिखनी है आपको। ओनली बाइनरी मैम हमें बेस ही फाइंड करना है। क्या? हमें बेस ही फाइंड करना है। अच्छा, बेस ही फाइंड करना है। हाँ। ओके, सो इट इज लाइक ट्रायल एंड एरर मेथड एज वेल एज। एक्चुअली आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिया हो, बट आई थिंक वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज लाइक एप्टीट्यूड। आप जो ऑनलाइन जो भी एप्टीट्यूड अटेंड करते हैं ना, कि मतलब इट इज अ ट्रिकी, आई थिंक नेट पे उसका कोई एग्जांपल एक दिया हुआ है, मुझे उतना याद नहीं है, बट आप ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं और नेट में भी। आपने सर्च किया था इंटरनेट पे? नहीं मैम, नेट पर तो अभी नहीं देखा है। ओके, तो ट्रायल एरर से किया है। एक्चुअली इसमें आपके सिलेबस में इसका कोई नहीं दिया है, बट वन टाइम ऐसा GTU में पूछा गया था, इसलिए मैंने उसमें लिखा हुआ है। बट आई थिंक नेट पे उसका सॉल्यूशन है, उसकी कोई मेथड है जिसके थ्रू आप बेस भी फाइंड कर सकते हैं। आप एक बार देख लेना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम है ना वो करवा दूंगी लेक्चर में। ठीक है, ओके मैम, ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगी कि अगर आपको वो समझ आ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। आपको बेस नहीं दिया है, बेस फाइंड आउट करना है आपको उसका। तो आप ट्रायल एंड ऑफ कोर्स वो 100 दिया है ना, तो
वो बाइनरी फॉर्म में ही होना चाहिए जब तक एज पर माय नॉलेज, क्योंकि वो आपने बाइनरी नहीं मैम ऑक्टल आ रहा है। octal are okay हाँ मीन्स बाइनरी octal एंड हेक्साडेसिमल, सो इट इज अ लाइक ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको तीनों के लिए ट्राई करके देखना है कि क्या आ रहा है। लेकिन नेट पे देख लेना अगर कोई अनदर मेथड है बेस फाइंड करने के लिए, तो मैं देख लूंगी, ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप टू का ट्राई कर सकते हैं, फिर 8 का ट्राई करना है, जो भी उसके आंसर के साथ मैच हो रहा है वही आपका क्या होगा, बेस होगा। आप बोल रहे हैं ऑक्टेल का है तो उसका बेस ऑफ कोर्स 8 होगा, ठीक है। एनी डाउट? हेलो, नो मैम। ओके। एंड मैडम ने आई थिंक ड्यू डेट का आपको 25 ही दी है, आप कल मुझे ऐसा बोल रहे थे कि आज की ड्यू डेट है। तेजल मैडम टोल्ड मी कि ओनली लाइक 25 ही मैंने दी है डेट, तो ड्यू डेट आपकी 25 है टू सबमिट द असाइनमेंट ऑफ नंबर 1। क्या ड्यू डेट है बताइए। कि आपको ये नहीं पता है कब सबमिट करना है वो असाइनमेंट? आपके गूगल क्लासरूम में देख लीजिए, आई थिंक इट इज ए 25, ठीक है। और मेंशन भी नहीं किया है, फिर भी आपको 25 पे आप सबमिट कर देना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, तो आप 25 तक तो एटलीस्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ प्लीज